We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में आपका स्वागत है। We thank you for joining us in this program to be blessed with the Word of God. हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीष प्राप्त कर सकें। You know, we have come into the last month of this year 2021. आप जानते हैं कि हम 2021 साल के आखिरी महीने में आ पहुंचे हैं। You know, 11 months we can really thank and praise God for keeping us safe and for protecting us in this pandemic. 11 महीने के लिए हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने इस महामारी के समय हमारी रक्षा की है। God has been so good in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में सच में बहुत ही भले हैं। It does not mean we haven't had any problems. इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई समस्याएं नहीं हुई। It doesn't mean we have had any sicknesses. इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कोई बीमारी से होकर नहीं गए हैं। What I'm saying is, in all these things, we believe God's presence is leading us and helping us to face the challenges and difficulties in life. मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति हमारी मदद करती है कि हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। And when you come to the month of December, it reminds us of an important event. और जब आप दिसंबर महीने में आते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में हमें याद दिलाता है। I'm sure all of you can identify that and recognize the event that is so popular in this month of December. मैं जानता हूं कि आप सब लोग इस दिसंबर महीने में सबसे विख्यात जो घटना है उसे पहचान सकते हैं। The birth of Jesus Christ. वो है यीशु मसीह का जन्म। It is something that is celebrated and remembered all over the world. और ये तो ऐसा है जिसे पूरे संसार में मनाया जाता है, उसे स्मरण किया जाता है। You know, what is Christmas? ये क्रिसमस क्या है? Christ plus Mass. That is what is presented as Christmas, which actually means celebration of Jesus Christ. क्राइस्ट और मास, इन दोनों को जोड़कर ये शब्द बनाया गया है। इसका असली में अर्थ है कि यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाना। Celebrating Jesus. यीशु का उत्सव मनाना। Celebrating the birth of Jesus. यीशु के जन्म का उत्सव मनाना। Celebrating the life of Jesus. यीशु के जीवन का उत्सव मनाना। Celebrating his death on the cross. क्रूस पर उसकी मृत्यु का उत्सव मनाना। Whatever he did for mankind, we are remembering and celebrating at the birth itself. उसने मनुष्य जाति के लिए जो कुछ भी किया उसे स्मरण करके उसके जन्म के समय हम उसका उत्सव मनाते हैं। And today we have changed it, we have modified it in so many ways. आज हमने इसे बदल दिया और बहुत ही आधुनिक भी बना दिया है। You know, we lose the focus on the person and we give importance to various other external factors. हमने उस व्यक्ति पर से अपना ध्यान हटाकर हम तो केवल बाहरी बातों को महत्व देते हैं। We focus on decorations. हम डेकोरेशन पर बहुत ज्यादा गौर करते हैं। We focus on our attires, dress. हम अपने ड्रेस पर ज्यादा गौर करते हैं। We focus on sending greetings. हम ग्रीटिंग्स भेजने पर गौर करते हैं। I'm not saying all these things are bad. मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब बुरा है। All these are very good things. ये सब कुछ जो है बहुत अच्छी चीजें हैं। If you keep the main person focused, that is Jesus Christ in all this celebration. लेकिन इस सारे उत्सव में आप मुख्य व्यक्ति यीशु मसीह पर अपना ध्यान बनाए रखिए, ये जरूरी I है। want to again say that this Christmas is an important event in history. मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि पूरे इतिहास में क्रिसमस की जो घटना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। So in this month in our programs we want to focus more on Jesus Christ and his birth. तो इस महीने हमारे प्रोग्राम में हम यीशु मसीह और उसके जन्म पर यहाँ पर ज्यादा गौर करेंगे। You know, a little while ago I said it's very important. कुछ समय पहले मैंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। You have to think why it is important. तो हमें ये सोचना होगा कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। For almost 2000 years, the power of Jesus Christ and the impact he can have in the lives of people have been felt by people all over the world. पूरे 2000 साल से यीशु मसीह की सामर्थ और उसने लोगों के जीवन पर जो प्रभाव डाला है वो पूरे संसार के लोगों ने अनुभव किया है। His birth was so important that at a certain point in history, people felt the history can be divided based on the birth of Christ. उसका जन्म तो इतना महत्वपूर्ण था कि लोगों ने महसूस किया कि उसके जन्म के आधार पर हम इतिहास को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। We have, BC, the time before Christ,
and AD, Anno Domini, which means in the year of the Lord. BC यानी ईस्वी सन पूर्व, ईसा के पूर्व का समय, और फिर एलोडोमिनी यानी प्रभु का वर्ष, इस तरह से दो भागों में बांटा गया है. And later on it has been changed into BCE, before the common era, and common era, that is now what we are in. और फिर उसके बाद BCE, बिफोर द कॉमन ईरा, इसमें बदल दिया गया, जिसमें अभी हम लोग इस समय हैं. However, people may divide it, but I'm saying the center of that division is the Christ, Jesus Christ, who came into this world. He is the focus. चाहे जिस तरह से भी विभाजन किया गया, मैं यही कह रहा हूँ कि यीशु मसीह जो इस संसार में आए, उसी पर गौर किया गया है. Because he is such an important person. क्योंकि वो सच में इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. He is someone who came for the whole world. वो तो सारे मनुष्य जाति के लिए आए. And that's why based on his life, the history is divided. और उसी के जीवन के आधार पर इतिहास को विभाजित किया गया है. The other way Jesus is very important to us is when he came into this world and lived as a man, he revealed God to mankind. यीशु मसीह इस संसार में आए और उसने मनुष्य जाति पर परमेश्वर को प्रकट किया है, उसे प्रकट कर दिया है. God became man to dwell in this earth. परमेश्वर मनुष्य बने कि इस पृथ्वी पर वो वास करें. यीशु के रूप में आए. Why? क्यों? You and I can better understand him. अच्छा है कि हम उसे बेहतर रूप में समझ लें, Know him more. उसे और ज्यादा जान ले, And know what he has gone through. और वो जिसमें से होकर गया उसे जान ले. And also fully confident of how he can help us today. और आज वो हमारी कैसी मदद कर सकता है, इसके बारे में पूरा भरोसा रखें. So his birth is important because he came as a man into this world. In other words, God came as a human being into this world. उसका जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस संसार में मनुष्य के रूप में आए. दूसरे शब्दों में स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर मानव रूप में आए. You know, in the book of Colossians chapter 2 verse 9, very, very beautifully and very briefly puts it like this: for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. कुलुसियो अध्याय 2 वचन 9 में ये बहुत ही सुंदर रीति से कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है. इस तरह ये वचन हमें बताता है. In bodily form, the godness is dwelling. ईश्वरत्व जो है वो सारी परिपूर्णता के साथ सदैव वास करता है यीशु मसीह में. He was human, he had flesh, but he was God. वो तो मनुष्य थे, उनका शरीर था, लेकिन वो परमेश्वर थे. वो परमेश्वर थे. Therefore, we understand that when he came into this world, he was the visible manifestation of God. और इसीलिए हम समझते हैं कि जब वो इस पृथ्वी पर आए तो वो तो परमेश्वर को दृश्य रूप में प्रकट करने वाले थे. You know, in the book of John, chapter 1, verses 1 and 2, it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 इस तरह से कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, और वचन ही परमेश्वर था. यही आदि में परमेश्वर के साथ था. Same chapter, 14th verse says like this, John 1:14, the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. इसी अध्याय में यूहन्ना 1 वचन 14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा. इस तरह ये वचन बताता है. And see, Jesus came and revealed the Father to us in his full glory. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उसने पिता को हम पर पूरी महिमा के साथ में प्रकट किया. And of all the reasons, you know, for Jesus coming into this world and the importance of it, I also want to say that he came to fulfill the
prophecies in the Old Testament. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए इसके बहुत से कारण थे। उन्हीं के साथ साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए कि उसके बारे में कही गई सारी भविष्यवाणियां पूरी हो जाएं। There are many prophecies written about Jesus Christ in the Old Testament. पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, बहुत सी भविष्यवाणियां की गई थी। Prophecies about his birth, उसके जन्म के बारे में भविष्यवाणी, his life, उसके जीवन के बारे में, his ministry, उसकी सेवकाई के बारे में, his death, उसकी मृत्यु के बारे even में, his resurrection. यहाँ तक कि उसके पुनरुत्थान के बारे में। Everything is foretold by different prophets in the Old Testament. पुराने नियम में अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा सब कुछ पहले बता दिया गया था। So when you think about Christmas, it is not simply as things suddenly happened abruptly. It is something that has been foretold, planned by God, and at a certain point of time he sent his son into this world. जब आप क्रिसमस के बारे में सोचते हैं तो ये अचानक हुई घटना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसकी भविष्यवाणी की थी, उसकी योजना बनाई और सही समय पर अपने पुत्र को भेजा। So what I want to do is I want to focus on one such prophecy today and relate it to our lives. तो आज मैं ऐसी एक भविष्यवाणी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे हम अपने जीवन में जोड़कर देखेंगे। It is found in the book of Genesis, इसे उत्पत्ति में पाया जाता है, the first book in the Bible. जो कि बाइबल की सबसे पहली किताब है। When God created mankind, that is Adam and Eve, he left them in the Garden of Eden, giving them some important instructions to follow and obey. जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया और जीने के लिए कुछ खास निर्देश भी And दिए। we find in the book of Genesis, 3rd chapter, they disobeyed God. हम उत्पत्ति अध्याय 3 में देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा भंग की। They took the fruit which God has forbidden them to eat, and Eve ate it, and then she gave it to Adam, and Adam also ate it. उन्होंने वो फल खाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। हवा ने उसे तोड़ा और उसे खाया और अपने पति को दिया और उसने भी उसे खाया। And God was coming there to see what was happening. वहां पर क्या हो रहा है ये देखने के लिए परमेश्वर वहां पर आए। He came to meet Adam, वो आदम से मिलने के लिए आए and he was speaking to him, what happened to you? और वो उससे बात कर रहे थे कि तुझे क्या हो गया। Actually, Adam was afraid because he ate the fruit and he felt naked. He was hiding. आदम ने वहां पर फल खाया था और उसने खुद को विवस्त्र महसूस किया और वो छिप रहा था, वो परमेश्वर से छिप रहा था। But God asked him, why are you hiding? लेकिन परमेश्वर ने उससे पूछा तू क्यों छिप रहा है, Where are you? तू कहां पर है आदम। And Adam was asked by God this question. और परमेश्वर ने आदम से ये सवाल पूछा। He asked Adam, have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? उसने आदम से पूछा जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है। You know, naturally he put the blame on his wife. तो स्वाभाविक रूप में उसने सारा दोष अपनी पत्नी पर मढ़ दिया। Maybe some of you are doing that even today. शायद आप में से कुछ लोग आज ऐसा ही कर रहे हैं। And he said, oh Lord, the one whom you gave me, she only gave that fruit to me. और उसने कहा कि प्रभु ये स्त्री जो तूने मुझे दी है उसने मुझे दिया इसलिए मैंने इसे खा लिया। And God turned to this woman. और फिर परमेश्वर स्त्री के पास आते हैं। And what is this you have done is a question God asked to Eve. और परमेश्वर ने हवा से पूछा कि तूने ये क्या किया। She puts the blame on the serpent. और उसने सारा दोष सर्प पर डाल दिया। She said, the serpent deceived me, I ate. और उसने कहा कि सर्प ने मुझे भरमाया और इसीलिए मैंने ये फल खाया है। And that's when, you know, the first promise is recorded in the Bible. Genesis chapter 3 verses 15, we read like this, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. और यहीं पर पहली भविष्यवाणी दी गई है। हम इसे देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 में। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। The birth of Christ and the first prophecy and the promise made by God to save mankind. हम यीशु मसीह की भविष्यवाणी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये पहली भविष्यवाणी है और परमेश्वर ने मनुष्य से यहाँ पर पहली प्रतिज्ञा की। The plan of Christmas began there.
क्रिसमस की योजना वहीं पर शुरू हुई थी And God had that plan. और परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी And that plan is to send His Son into this world. और योजना ये थी कि अपने पुत्र को इस संसार में परमेश्वर भेज दें। And this verse is known as also the first gospel in the Bible. और इस वचन को बाइबल में सबसे पहले सुसमाचार के रूप में जाना जाता है। It is the first good news given to mankind. ये तो मनुष्य जाति को दिया गया सबसे पहला शुभ संदेश है। And based on that, I want to bring out a few things that we can relate it to in our lives today. और इसके आधार पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जिस पर हम अपना जीवन आधारित रख सकते हैं। First of all, Satan is working in the world to deceive people into disobedience to God. सबसे पहली बात कि शैतान इस संसार में लोगों को भरमा रहा है ताकि लोग परमेश्वर की आज्ञा भंग कर दें। I don't know whether you understand this reality. मुझे पता नहीं कि आप इस वास्तविकता को समझते हैं या नहीं। What I'm saying is, this is not something that happened in the Garden of Eden. It is happening even today. मैं ये कह रहा हूँ कि ये केवल अदन की वाटिका में ही नहीं हुआ, लेकिन ये आज भी हो रहा है। We need to understand it and believe it and be cautious about it. हमें इसे समझना होगा, इस पर विश्वास करना होगा और इससे सावधान रहना होगा। You know, New Testament warns very clearly in Ephesians chapter 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. इफिसियों 6:12 हमें स्पष्ट बताता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इस तरह ये वचन हमें बताता है कि हमारा जो आत्मिक मल्ल युद्ध है वो तो केवल इन्हीं से हैं। You know, the reality is very clearly expressed in the scriptures. देखिए, वास्तविकता तो यहाँ वचन में बहुत ही स्पष्ट रूप में बताई गई है। The struggle Adam and Eve had with Satan that day is a reality that we are going through today. उस समय जैसे आदम और हव्वा ने शैतान की उन बातों का सामना किया, वैसे आज भी हम करते हैं। Friends, as we remember Christmas, I want you to know that from the very beginning until today, that struggle is a real struggle we are going through. मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस समय आप याद रखिए कि उस समय से लेकर इस समय तक वो जो कश्मकश है वो तो असली कश्मकश है जिसमें से हम होकर जाते हैं। That's why he says our struggle is not against flesh and blood. इसलिए यहाँ पर कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। It is not something that we can see and it is visible to us. ये तो ऐसी दृश्य बात नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। The struggle we have is invisible struggle. हमारा ये जो युद्ध है ये तो अदृश्य युद्ध है। Satan is tempting people today. आज शैतान लोगों की परीक्षा करता है। That's why 1 Peter 5:8 says, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. और इसीलिए पहला पत्रस 5:8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। He is roaring like a lion. वो तो सिंह के जैसे गरजता है। He is always after God's people. वो हमेशा परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ा है। How he can make them fall. बस उन्हें नीचे गिराना चाहता है। How he can make them disobey God's commandments. या बस उन्हें वो किसी तरह से परमेश्वर की आज्ञा भंग करने लगा दे। How he can disappoint and hurt God by hurting his people. और कैसे वो परमेश्वर के लोगों को चोट पहुंचाने के द्वारा परमेश्वर को निराश कर सकता है। And that's why we are called to be alert. और इसलिए हमें सचेत रहने के लिए बुलाया गया है। That's why Peter says, be of sober mind. और इसलिए पत्रस कहता है कि सचेत रहो, जागते रहो। James 4:7 says, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा।
What Adam and Eve did not do was they did not resist the devil. देखिए, आदम और हव्वा ने शैतान का सामना नहीं किया। When he came and tempted them, जब शैतान ने आकर उनकी परीक्षा की तो उन्होंने उसका सामना नहीं किया। when he came and deceived them saying, you will become like gods, God has lied to you. और उसने आकर उन्हें भरमाया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर ने तुमसे झूठ कहा है। They should have resisted. No, God will not lie. We trust him. We will not eat this fruit. उन्हें कहना था, नहीं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलेंगे, हम इस फल को नहीं खाएंगे, हम उस पर भरोसा रखते हैं, इसलिए ये फल नहीं खाएंगे। Friends, they yielded, and today lot more people are being attracted to his deception and are yielding themselves today. So it's a reality we are learning from this background. दोस्तों, आदम और हव्वा ने शैतान के सामने अपना समर्पण कर दिया और आज भी लोग शैतान के सामने समर्पण करते जा रहे हैं। इसी वास्तविकता को हम यहाँ पर सीखते जा रहे हैं। Are you someone who has felt that this struggle in your life? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस तरह की मुश्किल को महसूस किया है? Have you felt sometimes that you have fallen to the deception of the evil one? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप उस दुष्ट के धोखे में गिर चुके हैं? Are you someone who is feeling guilty because you have done so much of things against God? क्या आप अपने आप को दोषी महसूस करते हैं कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत कुछ किया है? You know, when God made the first promise, I want to go into the next thought I want to leave before you, that there is hope. There is a hope of salvation from God. परमेश्वर ने यहाँ पर पहली प्रतिज्ञा की है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए आशा है, आपके लिए परमेश्वर की ओर से उद्धार है। हमारे पास इसके लिए आशा है। If you have been deceived, there is hope. अगर आपने धोखा खाया है तो आपके लिए आशा है, ये तो निश्चय ही है। If you have yielded to sin, there is hope in Jesus. अगर आपने पाप के सामने अपना समर्पण कर दिया तो भी यीशु में आपके पास आशा है। Friends, that's the Christmas message. मेरे दोस्तों, क्रिसमस का यही संदेश है। That's why Jesus came to give hope to people who have sinned. जिन लोगों ने पाप किया है, यीशु मसीह उन्हें आशा देने के लिए आए हैं। Adam and Eve sinned and he gave the promise of Christmas and the hope of Christmas to them, but Jesus is giving the same hope to people today because he has already finished the salvation for all of us. आदम और हव्वा ने पाप किया और उन्हें ये प्रतिज्ञा दी गई, क्रिसमस की प्रतिज्ञा दी गई। यीशु मसीह ने आज वही प्रतिज्ञा हमें दी है। ये तो क्रिसमस की प्रतिज्ञा है। What is the hope you find in 3:15 of Genesis? उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 में आप कौन सी आशा देखते हैं? Look at it very clearly. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head. और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। He will crush your head means he will crush the head of Satan. वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, इसका मतलब यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचल डालेगा। So Jesus would be somebody who would be born of a woman. इसका मतलब तो यीशु मसीह ऐसे होंगे जो कि स्त्री से जन्मे हैं। As we know, Eve is a symbolic mother of all human beings as mentioned in Genesis 3:20. जैसे उत्पत्ति 3:20 में कहा गया है कि हव्वा जो है वो तो सारी मानव जाति की आदि माता है। Adam named his wife Eve, so she would become the mother of all the living. आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा ताकि वो सारी मानव जाति की आदि माता हो जाए। So Mary, the virgin who gave birth to Jesus, was also the descendant of Eve in one sense. देखा जाए तो मरियम जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया वो भी हव्वा के द्वारा ही आई है। So Jesus Christ came through Mary, and because of that we see the virgin's seed or the woman's seed will crush the head of Satan. और यीशु मसीह जो है वो तो कुंवारी मरियम के द्वारा आए। इसका मतलब ये है कि जो कुंवारी स्त्री का जो बीज है वो शैतान के सिर को कुचलेगा। That's the message of Christmas. यही तो क्रिसमस का संदेश है He came through a virgin कि वो एक कुंवारी के द्वारा इस संसार में आए हैं to defeat Satan. कि शैतान को हरा दे।
यही उसका कारण था। 1 John 3:8 says, "The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason Son of God appeared was to destroy the devil's work." पहला यूहन्ना 3:8 कहता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करें। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, Yes, to destroy the works of devil उसे शैतान के कामों को नाश करना था and to spoil all his deceptive schemes. और उसकी सारी भरमाने वाली योजनाओं को नाश करना था। Friends, if you're someone who have been victimized by Satan, by the devil and his army, today, I want to tell you, in Jesus there is hope. मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शैतान के द्वारा परेशान किए गए हैं, तो मैं आज बताना चाहता हूं कि आपके पास आशा है। Because in Christmas he came as a man. क्योंकि क्रिसमस के समय परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए। He knows you very well. वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। What you're going through, आप जिसमें से भी होकर जा रहे हैं, what your struggles are, आपकी कश्मकश जानते हैं, what your feelings are. आप क्या महसूस करते हैं। Because he himself was tested, tempted by Satan. क्योंकि शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह को परखा, उसकी परीक्षा ली। As we celebrate Christmas, please note that this Jesus is available to help you. जैसे हम क्रिसमस का उत्सव मनाते हैं, तो याद रखिए ये यीशु मसीह आपके लिए उपलब्ध हैं। He is our focus, don't forget that. उसी पर हमें गौर करना है, इसे मत भूलिए। We look forward to sharing about this more in the future programs. आने वाले प्रोग्राम में हम इसके बारे में और भी ज़्यादा आपको समझा कर बताएंगे। The prophecies that are made about Jesus and the fulfillment of it and how it can relate to our lives today. कि यीशु के बारे में कहाँ कहाँ भविष्यवाणी की गई और कैसे वो पूरी हुई, आज हमसे कैसे ये संबंध रखती है। Please feel free to contact us. आप निश्चय ही हमसे संपर्क करने में मत हिचकिचाइए। May God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number